Good morning, students. Today we will start Unit 2, that is travel. So this is all about the chapter we will start today. Is all about imagination. It's an imaginative poem. Here in this poem, the writer imagines something. Writer as a child, the poet as a child imagines that he would enjoy different things in different places at different time. Sometimes he imagines that he would enjoy in the pouch of kangaroo. Sometimes he imagines that he is riding a grasshopper. Sometimes he is enjoying the company of giraffe. So several imagination he is having, and at the end of the poem, the writer feels that he has come out of the imagination. He has become tired of imaginary world. Now he returns to the real world. So this poem is all about your supposition, your imagination, and this imagination gives lot of pleasure to the poet. The poet returns to his childhood and imagines what he would enjoy and how he would enjoy different imaginative power of brain. Sometimes the writer feels he would like to become a thread so that he can pass through the hole of the needle. There are different types of impossible imagination the writer has in his mind. So we will start the poem Travel Plan. Several people has different types of travel plan. Some people enjoy traveling at different places, but here the child enjoys traveling in his imagination. He is not going anywhere. He is going nowhere, despite he is enjoying traveling at different places just in his imagination, not in his real world. So start. If you could go anywhere, where would you go? यदि आपको कहीं जाना पड़े तो where would you go? तुम कहाँ जाओगे? Deep in the jungle, deep in the snow. तो बच्चे का रिप्लाई आता है, अगर मुझे कहीं समर वेकेशन के लिए कहीं जाना पड़े तो आई वुड गो डिप इन द जंगल. मैं जंगल सफारी करूँगा, जंगल में जाऊँगा. द क्वेश्चन इज वेयर वुड यू गो? वेदर यू वुड गो इन जंगल और इन ए स्नो, या फिर बर्फ से घिरी हुई वादियों में जाओगे, बर्फ में जाओगे या जंगल में जाओगे. दिस इज द क्वेश्चन हेयर. राइटर आस्क्स अ क्वेश्चन. इफ यू आर गिवन अ टाइम और अपॉर्चुनिटी, वेयर वुड यू गो? कहाँ जाओगे, जंगल या स्नो? डिप इन द ओशन टू टॉक टू ए फिश. इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश. यदि आपको कहीं मौका मिले जाने का हो तो कहाँ जाओगे? जंगल, बर्फ, समुद्र. ओशन मीन्स समुद्र में जाओगे जहाँ तुम मछलियों से बातें करोगे, या इफ यू कुड गो एनीवेयर वेयर वुड यू गो, वेयर वुड यू विश, तुम कहाँ जाना चाहोगे? सो फिश, विश, दिस इज द राइम स्कीम. दोनों वर्ड के साउंड सिमिलर हैं. गो, स्नो, यहाँ ए बी बी, दीज आर द सिमिलर साउंडिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम. गो, स्नो, फिश, ए बी बी, फिश, विश. In first quadrants, the writer is asking some question. If you are given opportunity to go somewhere, where would you go? Whether you would go snow, in jungle, whether you would go in the ocean, where would you go? If I would go anywhere, here the writer is giving response. यहाँ राइटर अपना आंसर दे रहा है. Here the writer is asking question, और यहाँ राइटर अपने आप को बच्चा बनाकर आंसर दे रहा है. इफ आई एम गिवन टाइम, इफ आई कुड गो एनीवेयर हेयर, व्हाट वुड आई वुड डू? यदि मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं ये सब काम करूँगा. आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ कैंगरू. पॉप मीन्स जंप करना. अगर मौका मिलता है तो मैं कैंगारू के जो पाउच होते हैं जिसमें उसके बच्चे जोए रहते हैं, उस पाउच में बैठ के पॉप मीन्स जंप करूँगा या इंजॉय करूँगा. आई वुड ट्रेवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज. मैं उसके पाउच में बैठकर पूरी दुनिया सारी जगह घूमता रहूँगा. आई विल ट्रेवल अराउंड एज लॉन्ग एज, जब तक मैं चाहूँ तब तक प्लेजर लेता रहूँगा, घूमता रहूँगा कंगारू के पाउच में बैठकर. एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूज. और कंगारू के इस बर्ताव के लिए
मैं उसको थैंक यू भी बोलूँगा, बिकॉज कैंगारू हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू सिट इन हिज पाउच एंड पॉपिंग इन द पाउच ऑफ कैंगरू, सो आई वुड से थैंक यू। तो बच्चे का रिप्लाई है, अब मुझे मौका मिला था मैं पहले क्या बनूंगा, पहले कहाँ जाऊंगा, आई वुड पॉप इन द पाउच, मैं कंगारू के पाउच में। कैंगरू इज द मर्सुपियल्स, मर्सुपियल मीन्स एनिमल हैविंग पाउच टू कैरी offspring is called marsupials. In second quadrants, I would go through the whole of a needle like thread. मैं सुई के होल से थ्रेड बनकर यात्रा करना चाहूँगा। I would spin like a top on the point of my head. मैं अपने हेड को नीचे कर पैर ऊपर करके लट्टू की तरह घूमना चाहूँगा। टॉप मीन्स लट्टू, लट्टू की तरह घूमना चाहूँगा। आई वुड स्केट ऑन द आइस, मैं आइस पर स्केटिंग करूँगा, स्केटिंग आइस पर स्लाइडिंग करूँगा। आई वुड स्विम इन ए ग्लास, आई वुड स्विम इन ए ग्लास, मैं एक ग्लास पानी में तैरना चाहूँगा। दिस जस्ट द इमेजिनेशन, एक बच्चे का इमेजिनेशन काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। सो अ चाइल्ड इज enjoying swimming in a glass of water. He is enjoying passing through the hole of a needle like a thread. He is enjoying moving on his head like a top. I would ride on a grasshopper if one should pass. यदि मुझे मौका मिला तो मैं ग्रास हॉपर को हॉर्स बनाकर उस पर राइडिंग करना भी चाहूँगा। So this is the imagination. In first quadrants, writer is asking question, if you are given time, given opportunity, where would you go? In second quadrants, the child replies, if I am given time, I would pop in the pouch of kangaroo, I would travel at different places and I would say thank you to the kangaroo. अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कैंगरू के पाउच में जंप करूंगा, एंजॉय करूंगा और उसे थैंक यू बोलूंगा। सेकंड, इन थर्ड क्वाड्रेंट्स द राइटर द चाइल्ड रिप्लाइज, आई वुड पास थ्रू द निडल, मैं सुई के होल से थ्रेड बनकर पास करना चाहूँगा। आई वुड यूज ग्रास हॉपर एज अ हॉर्स, मैं ग्रास हॉपर पर राइडिंग करना चाहूँगा। एंड आई वुड स्पिन ऑन माई हेड लाइक अ टॉप, मैं लट्टू की तरह अपने हेड पे घूमना चाहूँगा। दिस इज द इमेजिनेटिव एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, और जब मैं काफ़ी छोटा बनते बनते थक जाऊंगा, आई वुड राइड ऑन ए ग्रास हॉपर, मतलब कि डिफरेंट इमेजिनेशन करते करते मैं छोटा बनते बनते थक जाऊंगा। इवन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, समटाइम्स ही इज ट्राइंग टू बिकम अ थ्रेड, जब छोटा बनते बनते मैं थक जाऊंगा। आई वुड अब्रा कबरा माई सेल्फ टू बी टॉल, मैं एक लाइन इंचेंट वर्ड इंचेंट करूँगा। आई वुड चैंट अ वर्ड अब्रा कब्रा एंड आई वुड बिकम टॉल, मैं एक वर्ड चैंट करूँगा और मैं तो छोटा से बड़ा हो जाऊँगा। आई वुड स्टे